one variable. कहाँ तक पढ़े थे उसमें? Chapter 2. स्टार्ट कर दिए थे ना? यस सर, थोड़ा पढ़ाए थे, एक क्या दो पढ़ाए टॉपिक। थे? देखो तो कांस्टेंट हम लोग क्या पढ़े? सेकेंड चैप्टर, ठीक है बेटा? अच्छा उस दिन मेरा मूड खराब था ना, चलो क्या पढ़े? सेकेंड चैप्टर, ठीक है? क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलना पेन। यस लीनियर इक्वेशन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यस Okay, so before we study about what is the linear equation, we must know about the algebraic expression, but we will study first about algebraic expression. यस सर Algebraic expression. Okay, actually the algebraic expression is used to convert the word problem into a mathematical form. That means it will give word problem okay, a mathematical Yes, form. sir. A mathematical form. Okay, suppose karo Yes. someone gives you a statement, and the statement is, okay, I am in the market and I buy X mango. Okay, Yes, sir. I buy X mango, and the cost of one mango Rs 5 rupees per mango. Yes. Okay, 5 rupees per mango. Tell me the cost of Y mango. Sorry, What? I buy X mango and the cost of each mango per mango is 5 rupees. Then tell me what Yes, is sir. how much money I have to spend? So 5x. 5x Yes, sir. means this word problem can be expressed in this form or not? Yes. Yes, sir. In short form. And suppose I have to buy X pen, okay, and each pen cost 2 rupees. Okay, Yes, sir. and we have to buy Y notebook. Okay, and each notebook cost 10 rupees per notebook. Okay, tell me how much money I have to spend. If I have to buy X pen and each pen cost 2 rupees, at the same time, if I have to buy Y notebook and each notebook cost 10 rupees, then tell me how much money I have to spend. The 2x plus 10y. 2x plus 10y. 10y. Okay. Now suppose this amount of money you have to spend Yes, sir. or no? Okay, now tell me, Yes, sir. is this the word problem? Yes, sir. And the word problem is converted into mathematical form or not? It will convert it into Yes. mathematical forms. And what is X and Y? These are variable. Variable. Means the value of X and Y is independent of anything. Sorry, depend on another things. If we change the X Yes, sir. and Y, the result will be changed. Suppose
This is the total money we have to spend. Suppose Sachin have to Yes, buy sir. 4 pen and 2 notebook. How much money he have to spend? 28. 28. For this, what we'll do, in place of x, we'll We replace put x with the value 4. to 4. We replace x with 4 Yes, sir. and we Yes, sir. replace this y with 2. 2. Yes, sir. What can we write? We can write 2 into x is replaced with 4. 2 into Yes, 4 sir. plus 10 into 2. 10 into y. This y can be replaced in the form of 2. 2. And what will the result? 28. 28. Okay. Now, the situation changed and Arnav comes in the picture, and Arnav wants to buy 6 pen instead of 4. Sachin have buy 4 pen, but in place of Arnav, Arnav have to buy 6 pen, and he have to buy only one notebook. Okay. 22 rupees. What is the total money in this situation? 22. Huh? And it Means in place of Right. x, here we will replace x with 6, and Yes. in place of y, the y is replaced with 1. Am I right or not? So what can Yes, we write? sir. 2 into, in place of x, what we will write? 6, because Arnav had to buy 6 pens. In place of x, we will 4. write 2 plus, and in place of y, we will write 1, because Arnav had to buy only one notebook. Then what Yes, will the result? 18 or not? Haji, 18 कैसे? sorry, 10, 20. 22. Yes, sir. When Sachin have to buy 4 pen and 2 notebook, the result will be 28. And when Arnav have to buy 6 notebook and 6 pen and 1 notebook, the result will be 22. Means the number of pen and notebook is variable in nature. If we change the number of pen and notebook, the result will change. For example, in the first case, the result is 28. When the Arnav buy the pen and notebook, the result is 22. Okay, that means in this word problem, pen and notebook is a variable. Am I right or not? And this pen Yes, sir. and notebook is expressed in terms of x and y in the mathematics. Is it clear? yes, sir. Means we can use the English alphabet to represent the variable in mathematics. Am I right? Yes, sir. We will use English alphabet. For example, here pen is expressed with x, notebook is expressed notebook with with- y, and x and y is the English alphabet. We can represent this variable with a or b, or with Yes. pen with p or with n. We can use any English alphabet. Am I right? Yes, sir. तो वेरिएबल क्या होता है? अगर आप वेरिएबल क्या करें, किसी और के ऊपर डिपेंड करें, ठीक है? जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी एक एग्जांपल से समझाया था. आप क्या हो? एक वेरिएबल हो नहीं, क्योंकि आपका जो Yes. फीचर्स है, आपका जो कैरेक्टर है, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके फैमिली में Parents. फैमिली के पेरेंट आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, है कि नहीं? आपका टीचर Yes. आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, दैट मीन्स यू आर ए वेरिएबल. ओके,
हाँ पंडित जी, यस सर। धन भाग जो आप पधारे। हाँ, सर लेट हो गया, सर लेट हो गया। क्यों लेट हो जाता है बेटा? तो मैसेज तो पहले ही भेज दिया था। जय ठाकुर, क्या हाल है बेटा? सर ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो नाउ किसी को कोई दिक्कत इस नो सर। एक्सप्रेशन को समझने में? नो सर। तो क्या No, इस sir. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही था? टेल मी, क्या इस मैथ यस। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का के पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही थे? नो सर। नो, इसके पास कांस्टेंट भी थे। कुछ मैथमेटिकल कांस्टेंट भी। नंबर भी थे। क्या थे? कुछ यस सर। मैथमेटिकल नंबर भी थे। ठीक है, सर फंडामेंटल यूनिट भी थे। तो जो कुछ मैथमेटिकल नंबर है, और मैथमेटिकल नंबर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट इन नेचर होता है, क्योंकि ये क्या है, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप कहीं जाके मांगोगे 2 टॉफी, वो आपको 2 टॉफी ही देगा, he will not give you 3 टॉफी। am I clear? means it is constant in nature, am I right? am I right? यस सर। अब Yes, देखो, sir. इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। अब पानी पी लेता हूँ, ठीक है? वेट यस फॉर सर। 1 मिनट, प्लीज वेट फॉर 1। देखो, अब देखो इसी सिचुएशन को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि क्या नाम है इसका, सचिन कहाँ गया बेटा तू? मार्केट। यस सर। कहाँ गया? मार्केट। यहीं पे है सर। मैं अभी आपको मार्केट जाना है, ठीक है? यस सर। बहुत लिखा था, माना जाता है बहुत चीज। क्या पंडित जी यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। अर्नब किशोर समझ में आ रहा बेटा? अब देखो, सचिन को क्या करना है? नोटबुक बाय करना है, और क्या बाय करना है? पेन बाय करना है, ठीक है? नोटबुक। यस सर। ठीक है, अब देखो जब ये मार्केट जाएगा, मान लेते हैं ये ऑटो बस यूज करे, अब ये मत बोला मैं साइकिल से ही चले Yes, जाता हूं, sir. ठीक है? मानो ये बस यूज किया, बस वाला इससे क्या करेगा? चार्ज करेगा। यस बस का भाड़ा सर। चार्ज करेगा। मान लेते इससे 10 रुपया बस वाला अपना भाड़ा चार्ज किया, ठीक है? यस। ये आने जाने का दोनों है, 5 रुपया जाने में, 5 रुपया Yes, आने sir. में, ठीक है? इज इट क्लियर? यस हाँ गुड्डू, समझ में आ रहा है? हाँ गुड्डू बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, अब देखो सचिन सचिन ये डिसाइड करके नहीं गया कि उनको कितना नोटबुक खरीदना है, कितना पेन खरीदना है। पेन हम खरीदना मान है। लेते हैं सचिन को X नोटबुक खरीदना है, ठीक है? यस सर। और Y यस सर। पेन खरीदना है, पेन खरीदना है। ठीक है? अब जब यस सर। सचिन मार्केट जाता है, जब वो शॉप पे जाता है, कहाँ जाता है? शॉप पे। शॉप पे। शॉप पे। तो सचिन को पता चलता है कि नोटबुक का पर पूछ ये क्या है? पर Right. नोटबुक है, ठीक है? एक नोटबुक का कॉस्ट कितना पड़ता है? यस। मान लेते हैं RS 10 पड़ता है, ठीक है बेटा? यस और यस पेन सर। का कॉस्ट पर मान लेते हैं RS 5 पड़ता है, ठीक है? देखो अभी क्या हुआ, अभी सचिन ने डिसाइड नहीं किया कि कितना पीस नोटबुक और कितना पीस पेन उसको खरीदना है। अगर मानो जब कोई डिसाइड नहीं करता तो वो चीज क्या होता है? वेरिएबल होता है।
होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तुमने से मॉडर्न ड्रेस पहन रखा है, बाकी तुम्हारे ख्यालात बहुत पुराने हैं। सर सुनाई नहीं दे टीवी रहा। चल रहा है। सर टीवी चला सर किसी के घर। अविनाश, अब तक अपने पास आने नहीं दिया। आप ही Yes, घर sir. पे चल रहा है। कुछ नहीं, वो भी सर नहीं सर, मेरे घर पर नहीं सर। जाएगा। तुम्हारी गलती हो सकती नहीं, गलती तुम्हारी। सर सुनाई नहीं दे रहा। प्लीज जिसके घर के पीछे में बैकग्राउंड में आवाज आ रही है म्यूट कर लो। सर गुड्डू के घर से चला सर। बेटा एक बात बोलूं, ऐसा ही है, एक चीज बोलूं, Yes, sir. जो ये सोच रहा हो कि टीवी चला के या गाना बजा के हम सर को डिस्टर्ब करें, सर को कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है? खुद ब खुद डिस्टर्ब हो रहे हो। आज Yes, sir. हम आ रहा हूं, पढ़ Yes, पा रहे हैं। sir. हाँ, जो आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ गाना सुन रहे हो, जब कल तुम अपने घर पे जब फ्यूचर होगा ना तुम्हारा, ठीक है, जब आप अपने घर पे होगे, ठीक है, तो ढोल बजाना, ठीक है? जब जब पढ़ाई लिखाई का समय चला जाएगा ना, ढोल बजाएगा, ठीक है? और फिर उसी ढोल बजा के थिरकोगे जिंदगी में, डांस करना, हमको कुछ नहीं ले पाओगे। किसी के बैकग्राउंड से अगर डिस्टर्बिंग आवाज होती है तो अपने जिंदगी को बर्बाद करोगे, मेरा क्या करोगे? आज क्लास में गाना बजाओ, कल तुम्हारी जिंदगी में गाना बजेगा, ठीक है? और जब तुम्हारी जिंदगी में गाना बजेगा, तुम्हारा जिंदगी डांस भी करेगा, याद रखना। मेरा क्या उखाड़ लोगे? मेरा हो गया इतना भगवान नॉलेज दे दिए हैं कि कहीं भी जिंदगी कट सकती है। अपना सोचो। एक ही चीज को बार बार समझा रहा हूं कि कहीं कोई डाउट ना रह जाए। देखो, टेल मी, अब देखो सचिन जब मार्केट गया, वो तो डिसाइड नहीं किया था हमको कितना नोटबुक लेना, कितना पेन लेना। दैट मींस ये क्या है? नंबर ऑफ नोटबुक एंड नंबर Yes, ऑफ sir. पेन क्या है? वेरिएबल इन नेचर है। Variable. ये 2 भी Yes. नोटबुक ले सकता है, 5 भी ले सकता है। Yes, जो sir. चीज वेरिएबल होता है उसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट से। Yes, sir. नोटबुक को किससे English डिनोट alphabet. एक्स से। इंग्लिश सर। नोटबुक को किससे डिनोट किए? एक्स से। एक्स से। पेन को किससे X. डिनोट किए? वाई से। वाई से। Y. Means number of notebook and number of pen changed. It depend on Sachin and their budget and his budget. Am I clear? अब देखो, लेकिन सचिन जो शॉपकीपर है उसने एक नोटबुक का कितना दाम बताया? 10. तो सचिन अपने ब्रेन में क्या करेगा? एक एस्टिमेशन करेगा। अगर मैं इतना नोटबुक लेता हूं तो मुझे कितना मनी एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? Yes. Sachin will multiply करना। x with this 10. Am I right or not? Yes. Yes, sir. 10 into x. Yes, sir. And he also किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? टीवी का। यार जिसके बैकग्राउंड से टीवी की आवाज आ रही है ना, हम घर वाले के दिमाग को सोच के आश्चर्य होती है। आदमी का पहला इंपॉर्टेंस होना चाहिए अपने बच्चे को पढ़ाना, ना कि खुद मस्ती करना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सही। हाँ पंडित जी, मैं सही ही बोलता हूँ। मैं गलत कहाँ बोलता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा? वो अपने सचिन अपने माइंड में एक एस्टिमेशन करेगा। अगर मैं इतना नोटबुक खरीदता हूँ और एक नोटबुक का इतना रुपीस लगता है, तो मुझे क्या होगा? नोटबुक पे इतना रुपीस स्पेंड करना होगा। Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. ये है कौन? हम पता ना, उसको मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, सचिन को सिर्फ नोटबुक ही तो नहीं लेना है ना, No, sir. सचिन को और क्या लेना है? पेन भी लेना है। पेन। अब वो पेन का भी एस्टिमेशन करेगा। जब वो पेन का एस्टिमेशन करेगा तो अगर एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीस है
और उसके माइंड में सोच रहा है कि वाई पेन मैं खरीदूं, उसको कितना रुपीस पेन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा? 5y 5y। ठीक है, अब बताओ टोटल मनी सचिन को कितना खर्च करना पड़ रहा? टोटल मनी 10x plus 5y 10x प्लस 5y प्लस 5y। हाँ जी, जिया कुमारी, जय, अच्छा अविनाश, ज्योति, यस सर। ज्योति बेटा, ज्योति क्या सचिन ने ये सही Yes, बोला? sir. क्या सचिन ने ये सही बोला? यस सर। 10x Yes, प्लस 5y ही एक्सपेंड करना होगा, इज इट राइट? sir plus 10 यस sir plus Yes. 10 Plus 10. plus 10 ये भी तो इसको एक्सपेंड yes sir स्पेंड करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है कि नहीं कर रहा है? yes sir यस सर। हाँ? अब देखो कर यहाँ बहुत पे काला दिया सर। ये Yes, x sir. क्या है? ये x और y क्या है बेटा? variable वेरिएबल। व्हाट इज दिस? वेरिएबल। देखो वो कितना constant नंबर ऑफ नोटबुक लाता या पेन लाता, क्या बस भाड़ा में कोई चेंजिंग होगा? नो सर। इज फिक्स, no sir No, sir. इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, क्या वे नंबर ऑफ नोटबुक या पेन पे बस का भाड़ा डिपेंड करेगा? नो सर। नहीं करेगा। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। भाई इतना तो तुमको लगेगा ही। अगर तुम मानो कुछ नहीं भी लेके आते हो, मानो कुछ तुम भी लगे नोटबुक 0 लाते हो, पेन 0 लाते हो, लेकिन आपको कितना एक्सपेंड करना पड़ेगा? 10। 10. तो यही क्या है? 10. कांस्टेंट है। इट विल नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट विल नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी यू हैव टू बाय, yes sir डिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी यू हैव बाय। यस। अब कोई इसमें उठेगा बोलेगा सर मैं तो ट्रक में करके लाऊंगा, सारा चेंज कर जाएगा ना। वो एक अलग सिचुएशन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक yes sir एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? algebraic expression और एक चीज ध्यान रखना, एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है। क्या होता है बेटा? सिर्फ एडिशन होता है। Addition. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है, उसका ना ही सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। कभी भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। yes sir अब कोई बोलेगा सर मैं कहीं कहीं देखा हूं 10x माइनस 5y प्लस 6 लिखा हुआ, यहाँ तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। बेटा सब्ट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ एडिशन। सर 5 माइनस में है सर। सब्ट्रैक्शन सर 5 माइनस में है सर। subtraction is a special type of addition, means this can be expressed in the form of 10x plus minus minus 5y 5 plus 6, 5 yes means we are adding minus 5y to this 10x. Am I right or not? yes sir Yes, Always sir. remember that we can only perform addition operation on an algebraic expression. Algebraic expression में सिर्फ और सिर्फ addition हो सकता है. We cannot perform subtraction operation on the algebraic expression. Am I clear? Yes, yes sir sir. Now look at the term which is. अब एक चीज होती है, देखो 10x ये क्या है? एक क्वांटिटी का कॉस्ट है जो कि नोटबुक का है,
Am I right or not? ये जो 5 Yes, sir. ये क्या पेन का है pen, और ये क्या है बस का है। bus, अब देखो cost, ये सारे चीज क्या है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट हुए हैं और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा क्या होगा एडिशन ही होगा। क्या होगा बेटा हमेशा क्या होगा addition, ऑपरेशन एडिशन, होगा। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट होता है उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको टर्म। term, ये बताओ इसमें कितना टर्म टर्म 3, 3 टर्म। 3, ये जो अलजेब्रिक Yes, sir. एक्सप्रेशन फॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ 3 टर्म फॉर्म किया है। ठीक है Yes. किसी कोई दिक्कत yes, तो no नो sir, सर, Oh, sir. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 टर्म no sir, हमेशा किससे सेपरेट होगा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन से, टर्म हमेशा किससे सेपरेट होगा एडिशन प्लस से, addition term से, ठीक है वी आर Very. मस्ट रिमेम्बर इट। हाँ अर्नब कान में पेंसिल नहीं करना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेट बाय एडिशन साइन ऑलवेज। यस सर, ओके एम आई राइट और नॉट। यस सर, yes sir, और एक चीज याद करना है Yes, sir. हियर इज 10 5 है ना ये क्या है जो वेरिएबल का प्रीफिक्स है। क्या है बेटा वेरिएबल का प्रीफिक्स variable का यानी क्या है prefix, वेरिएबल से पहले आया है और जो चीज किसी से पहले आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीफिक्स। एम आई राइट और नॉट। सही बोल रहा हूं कि नहीं सचिन Yes, sir. पंडित जी Yes, sir. अर्नब ज्योति आशीष yes sir, गुड्डू जय ठाकुर अनीता कुमारी सोनाली मेघा भारती। हाँ भारती समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो Yes, मैंने sir. क्या बोला देखो जो वेरिएबल का क्या हो प्रीफिक्स हो प्री मींस क्या होता पहले यस ठीक है जो वेरिएबल का प्रीफिक्स हो यहाँ x का प्रीफिक्स क्या है 10, 10 y का प्रीफिक्स 10. क्या है 5, 5 5. जो प्रीफिक्स होता है किसी वेरिएबल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा coefficient, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा Coefficient. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 10 ये 10 क्या है x का प्रीफिक्स है। अगर आपसे पूछे कि x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है क्या बोलोगे 10। 10, y का कोफिशिएंट क्या है 5, अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करना जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का वो हमेशा या तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है या तो वो मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा होगा या डिवीजन का। जब मैं डिवीजन बोलता हूं डिवीजन क्या है स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन क्या है स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Special type of. special type तो of ऑलवेज याद रखना कि वेरिएबल और कोफिशिएंट का क्या होता है हमेशा जुड़ा होता है किससे मल्टीप्लिकेशन साइन से। हम वेरिएबल और कोफिशिएंट का कभी डिवीजन नहीं करते वो हमेशा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में होता है। पता बेटा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन क्या है एक स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है। जैसे देखो 2/3x या ऐसे भी x/3 + 4 ये क्या वेरिएबल है। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1/3, 1/3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 × x + 4
Yes, sir. देखो ये वेरिएबल है x और x का कोएफिशिएंट क्या है 1/3, ये क्या है मल्टीप्लाई में है ना। हाँ Yes, sir. ऑलवेज रिमेम्बर इट कि जो कोएफिशिएंट होता है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? Multiply. मल्टीप्लाई किया जाएगा। और दो टर्म को हमेशा क्या करेंगे? एडिशन ही करेंगे। दो टर्म के बीच में ना ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, ना ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ना ही डिवीजन करेंगे। दो टर्म का क्या होगा? हमेशा एडिशन होगा। Sir, addition. एडिशन होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन देखो अभी मैंने क्या लिखा था 10x प्लस क्या लिखा था? कितना y 5y. 5y प्लस plus 10. 10. इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2. 2 x and y. एक वेरिएबल x है, दूसरा एक वेरिएबल वेरिएबल y. तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2। 2. लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या है? Linear equation in one लिनियर variable. इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मींस हम लोग जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर को, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना वेरिएबल होगा? 1. वेरिएबल का संख्या कितना होगा? 1 होगा। Is it 1. clear? समझ में आया? इसमें नहीं है। Yes, sir. ये क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, सॉरी ये भी लीनियर इक्वेशन तो है। अब आगे पढ़ाएंगे In two variable है. क्या है जिसका डिग्री 1 हो जाए, उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब ये डिग्री क्या होता है? मतलब sir. ये हाईएस्ट पावर होता है। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर Wow. ऑफ वेरिएबल। ओके, अब यहां देखो x का पावर क्या है? 1. y का पावर क्या है? 1. 1. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर क्या है? 1. 1। इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन। Linear equation. अब जैसे देखो 10x² प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? Sir, 2. जिसका पावर 2 है. और आगे यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन? X square. x X. x not squared. X is only the variable. Means the value of this will depend on x. And what is the power of x? X. What is the power of 2. this variable x? Square 2. 2. 2. 2. 2. And what is degree? What is the highest power here of variable? 2. 2. 2. Degree is 2. This algebraic expression. इस algebraic expression का डिग्री क्या है बेटा? 2 है। ये algebraic expression लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, लीनियर algebraic expression नहीं होगा, ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक। जिसका वेरिएबल क्या, जिसका डिग्री क्या 2 हो। समझ में आया? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंगल वेरिएबल और उसका पावर भी क्या हो? 1 हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अभी तक हम लोग इक्वेशन को नहीं पढ़ा है। अभी तक हम लोग इक्वेशन को नहीं पढ़ा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अब चलो एक चीज बताओ, 3x प्लस 6, ओके, प्लस 7. Tell me, what is the coefficient of x? 3. Or this algebraic, what is the coefficient of x? 3. 3. Okay, and how many terms are there? How The many 2 terms terms. are there? 2 terms. 2. One Two term or terms. 2 terms? In this case, what is the coefficient of variable
x. -3. -3. -3. And how many terms are there? 2. 2. Now 4x minus 6x plus 7 plus 9x. How many terms are there? 4. 4. 4 terms. And how many The 4 terms. 4 terms. how many variable are there? 3. 3 3. variable. मारूंगा बेटा, ये सब एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, एक एक वेरिएबल है। यस सर, एक ही variable. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 1 9x minus 6x क्या होगा? 3x plus 4x 3x plus 7x plus 7x. अब बताओ कितना टर्म Yes, sir. वेरिएबल है? तो 2 टर्म है. तो इसमें कितना टर्म है बेटा? 2 टर्म है वेरिएबल है। 2 टर्म, दो. एक वेरिएबल. जो वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल का ये क्या था? एक टर्म था, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, क्योंकि ये Yes, क्या है? सब एडिशन साइन से जुड़ा हुआ है। अब देखो यस. एक चीज यहाँ गौर करने की चीज है, इसका भी वेरिएबल क्या? फर्स्ट टर्म का भी वेरिएबल क्या है? x। सेकेंड टर्म का भी वेरिएबल क्या है? x। थर्ड टर्म का भी क्या? वेरिएबल x। अगर सर